Now I'm explaining plant growth regulators, that is PGRS characteristics. Plant growth regulators can also be called phytohormones or plant growth substances. तो जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं उन रेगुलेटर्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, मतलब कि प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कहते हैं. क्लासिफिकेशन. Plant growth regulators are grouped into two categories: plant growth promoters and plant growth inhibitors, based on the nature of their action. They play an important role in plant response to wound and stresses of biotic and abiotic origin. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है. एक तो जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं तो वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, और एक जो प्लांट की ग्रोथ को कम कर देते हैं उन्हें हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं. तो नेचर ऑफ एक्शन के बेस पे ये दो तरीके से क्लासीफाई हैं, प्रमोटर एंड इनहिबिटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट में. जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन के, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Now I'm explaining first plant hormone, that is auxin. Discovery and isolation. Charles Darwin and his son Francis Darwin observed that the coleoptile of canary grass responded to unilateral illumination by growth towards the light sources, that is phototropic curvature. After a series of experiments, it could be concluded that the tip of the coleoptile is the site of production of a substance that causes the bending of coleoptile. FW went isolate auxin from the tip of the coleoptile of oat seedling. तो चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास होती है उसकी कोलेप्टाइल जो है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोलेप्टाइल की टिप जो है वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर एक प्रोडक्शन होता है एक सब्सटेंस का जो कोलेप्टाइल को बैंड कर देता है, मोड़ देता है. FW वेंट ने टिप से कोलेप्टाइल की, ओट सीडलिंग की टिप से ऑक्सिन आइसोलेट किया, सेपरेट आउट किया. द वर्ड ऑक्सिन इज राइट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सिन मीनिंग टू ग्रो. Indole 3-acetic acid, that is IAA, and indole butyric acid have been isolated from plants. Naphthalene acetic acid NaA and 2,4-dihydroxyacetic acid 2,4-D are synthetic oxys. तो ऑक्सिन जो है उसका मतलब होता है ग्रोथ करने से. इंडोल एसिटिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑक्सिन का टाइप है, और इसके अलावा NaA और 2,4-D भी डिस्कवर हुए थे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन कंट्रोल ग्रोथ ऑफ प्लांट. दे ऑल्सो कंट्रोल सेल डिवीजन, vascular cambium and cell xylem differentiation. They are responsible for apical dominance in plant. They prevent the formation of abscission layer and thereby prevent premature fall of the leaf, flower, fruit, etc. तो एप्लीकेशन एंड यूजेस क्या हैं. ऑक्सिन आर यूज टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. दे आर यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इन टोमेटो. 2,4-D इज यूज एज अ वीडीसाइड और हर्बिसाइड टू किल डाइकोटिलेडन वीड्स. They promote flowering in pineapples and lychee. Auxin are used to prevent the premature fall of leaf, flower, fruit, etc. Now I am talking about gibberellin, discovery and isolation. The Bacne, that is foolish seedling disease in rice seedling, was caused by a fungus Gibberella fusicori. E. Kurosawa found that the symptom of the disease could be developed in uninfected seedling by treating them with a sterile filtrate of fungus. The active principle was later identified to the gibberellic acid. There are more than 100 gibberellic reported from various higher plant and fungi. They are denoted to GA1, GA2, GA3 and so on. GA3 is the first gibberellin to be discovered and is the most intensively studied. Now I am talking about physiological effect. They cause elongation of the internode. They promote banding in roastae plant like cabbage, beetroot, etc. GA3 initiates synthesis of hydrolases to digest and mobilize the reserve food material of the seed to the developing embryo, and thus is to break seed dormancy. Now I am talking about application and uses of gibberellin.
Gibberellin are used to increase the length of a grape's stalk. They cause the fruit-like apple to elongate and improve in shape. They delay senescence and hence the fruit can be left on the tree for longer period. This increases extended the market period. GA3 is used to speed up the malting process by brewing industry. By increasing the length of internode in sugarcane, GA3 increase the yield of sugarcane by about 20 tons or acre. Spraying juvenile conifers with GA3 haster their maturity and lead to early seed production. तो जिब्रेलिन जो है वो राइस सीडलिंग्स में एक फंगस जो है जिब्रेला फुलोकोजाई उसको ई कोरोसावा साइंटिस्ट ने देखा उसमें सिम्टम डिजीज़ के, और उससे फिर इसको फंगस को सेपरेट करके आइडेंटिफाई किया गया जिब्रेलिक एसिड को। ये इंटरनोड में इलांगेशन करता है और लेंथ भी बढ़ाता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनिन discovery and isolation. Scooge and his co-worker observed that tobacco callus could proliferate only if the medium contains, in addition to oxygen, the extract from yeast, coconut milk, or DNA. Scooge and Miller later identified and crystallized the cytokinesis promoting substance and called it kinetin. Cytokinin were discovered as kinetin from the autoclaved herring sperm DNA. Later, several naturally occurring cytokinin and synthesis compound with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinin are synthesized in plant in region where rapid cell division occurs. Example: root apices, shoot buds, young fruits, etc. Now I'm talking about physiological effect of cytokinin. Cytokinin help in the growth of lateral bud into branches and help to overcome apical dominance. They also promote adventitious shoot formation as they help to promote new leaves and chloroplasts in leaves. They promote nutrients metabolism and help in delay senses. Application and uses: they are used to make the lateral bud grow into branches. They are used to delay leaf senescence. Now I am talking about abscisic acid, that is ABA, discovery and isolation. Three independent researchers reported three kinds of growth inhibitors: inhibitor B, abscission second, and dormin. Later, all of them were found to be chemically similar and named as abscisic acid. Physiological effect: it play an important role in seed development and inducing seed dormancy. By it help the seed to withstand desiccation and other unfavorable factors. It stimulates the closure of stomata under condition of intense solar radiation and water stress. It increases the tolerance of plant to various stresses and hence called stress hormone. ABA stimulate the formation of abscission of layer of leaves, flower and fruit. Application: seed and tubers are treated with ABA to remain dormant during storage. Now I am talking about ethylene. तो पहले एब्सिसिक एसिड को देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी जो हुई थी, तीन तरह के ग्रोथ इनहिबिटर रिसर्च में मिले थे: इनहिबिटर बी, एब्सिसिक 2 एंड डॉर्मिन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो ये सीड डेवलपमेंट में और सीड डॉर्मेंसी जो है उसको इंड्यूस करने में हेल्प करता है और सूखे से बचाता है, सीड को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा होने पर वाटर स्ट्रेस से बचाता है, प्लांट की टॉलरेंस बढ़ाता है ये हार्मोन। ABA जो है वो एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करता है फ्लावर, लीफ और फ्रूट में। एप्लीकेशन की बात करें तो ABA जो है वो डॉर्मेंट रहता है स्टोरेज के टाइम पे। नेक्स्ट हार्मोन इज एथाइलिन, discovery and isolation. Cousins confirmed the ripened orange released a volatile substance that hastened the ripening of stored bananas. Later, this volatile substance was identified as ethylene. Physiological effect: it promotes horizontal growth of seedling and swelling of the axis. It induces apical hook formation called epinesty in dicot seedling. It enhances the rate of respiration during ripening of fruit. This phenomena is called climacteric.
तो इथाइलिन जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के समय पे, और इट प्रमोट सेंसेंट एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। और डिस्कवरी की बात करें तो कज़िन ने कंफर्म किया था कि रैपेंड ऑरेंज जो है वो रिलीज़ करते हैं एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो हासेंड द रैपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनाना। लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। तो ठेले पे जो आप केले देखते हो वो इथाइलिन से ही पकाए गए होते हैं। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है, बाकी सारे हार्मोन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इथाइलिन एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारे हार्मोन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। It promotes rapid elongation of internodes and petiole of deep water rice plant and help to leaf to be above water level. Application की बात करें तो इथोफॉन is the compound used to supply ethylene as an aqueous solution. It is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. It hastens fruit ripening in tomato and apple. It promotes the production of female flower on a monoecious plant and also on genetically male plant. Thus, it increase productivity. तो इथाइलिन एक कंपाउंड है जो सप्लाई करता है इथोफोन की और एक्वा सॉल्यूशन की। ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में, और फलों को पकाने का काम, टोमेटो एप्पल को पकाने का काम इसका है। इसके अलावा ये फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन करवाता है मोनोशियस प्लांट में, और जेनेटिकली मेल प्लांट में प्रोडक्टिविटी को भी ये इंक्रीज़ कराता है। तो इस तरीके से ये थाइलिन के काफ़ी फंक्शन देखने को मिलते हैं। ये एपिकल हुक फॉर्मेशन भी करता है डाइकॉट सीडलिंग में, जिसे हम एपीनेस्टी के नाम से जानते हैं, और ये प्रमोट करता है हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। तो ये इथाइलिन के फंक्शन थे। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, मेनली प्लांट की ग्रोथ करवाता है, और इसके अलावा सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन करवाता है, सेल की साइज़ को भी बढ़ाता है और टिश्यू फॉर्मेशन भी कराता है। ऑक्सिन हार्मोन टिप पे पाया जाता है मेनली ये। जबकि जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी इज़ द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड। अगर हम चने भिगोएं तो सुबह कुछ छोले जो हैं वो कड़े के कड़े रह जाते हैं, या जो आप चने खाते हैं तो कुछ सीड कट 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 बोलते हैं कड़े हुए, वो डॉर्मेंट सीड है। उनमें सीड इतना हार्ड हो जाता है कि इसको ऐसे सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर हम इसे बोएंगे भी तो इससे कुछ नहीं उगेगा। तो इस चीज़ को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। तो डॉर्मेंसी को अलग करने का एक ही तरीका है, या तो उसके सीड कोड को थोड़ा सा छील दिया जाए पर एम्ब्रियो डैमेज नहीं होना चाहिए, या फिर आप उसे जिब्रेलिन हार्मोन में कुछ घंटों के लिए डिप कर दें तो सीड कोड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी वॉल परमेबल हो जाएगी, फिर वो जर्मिनेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जिब्रेलिन के और फंक्शंस की, तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्लांट में रोजेट लाइक अपीयरेंस होती है, जो गुच्छे में ग्रुप में प्लांट ग्रो करते हैं जैसे कैबेज में और बीट रूट में, ये उसको बढ़ावा देता है। इंटरनोड के लिए इलॉन्गेशन करता है। प्लांट की हाइट बढ़ाने में जिब्रेलिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और लेंथ प्लांट की जब बढ़ाने की बात आती है तो जिब्रेलिन हार्मोन को यूज़ किया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन नाम से ही पता चल रहा है। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि ये सेल डिवीज़न में मेन रोल प्ले करता है। प्लांट में जो सेल डिवाइड करती हैं वो साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से ही होती है। तो इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीज़न। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है। ग्रोथ करता है लेटरल ब्लड्स की, बट की, और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी करता है। अब हम बात करते हैं ABA एब्सिसिक एसिड की। अभी तक हमने जितने भी प्लांट हार्मोन देखे
ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये सभी ग्रोथ प्रमोटर थे, ग्रोथ को बढ़ाते थे। लेकिन अब जो हार्मोन की हम बात कर रहे हैं एब्सिसिक एसिड की, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को कम करता है, ये सारे काम उल्टे करता है। ये डोरमेंसी को बढ़ा देता है, डॉर्फिज्म को बढ़ाता है, प्लांट बौने रह जाते हैं, स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है ये, और प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल करता है, पत्तियाँ और फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो EBA का सारा फंक्शन उल्टा होता है। जबकि अब जो लास्ट हार्मोन है इथाइलिन, वो एक गैसेस हार्मोन है, बाकी सारे हार्मोन लिक्विड फॉर्म में थे। इथाइलिन का जो मेन फंक्शन है, गैसेस हार्मोन है ये, इसका मेन फंक्शन होता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाना। और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अलावा जो है ये सेंसेस और एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर भी प्रमोट करता है। तो इसके और एप्लीकेशन की बात करें तो इथाइलिन जो है वो टोमेटो और एप्पल की रैपनिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर भी करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट।